Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is division. Learning objectives. Divide the numbers by 1 or 2 digit numbers. Identify the pattern in dividing by 10, 100, 1000, etc. to solve word problems on division of numbers. Now tune up. Number 1. Division is repeated subtraction. For example, how many 9s can you subtract from 63? 63 minus 9 minus 9 minus 9 minus 9 up to कहाँ तक 0. तो कितने 9 हमने माइनस किए? 1 2 3 4 5 6 7. 9 7s are 63. So you can subtract 7 9s from 63. Now second, 1506 roses are there in 6 crates. If each crate has same number of roses, then how many roses are there in one crate? How many roses can be packed in 19 such crates? तो number of roses कितने हैं? 1506. Crates कितनी हैं? Number of crates is equals to 6. Number of roses in one crate is equals to कितना होगा? One crate में कितने हैं? Total roses को divide कर दिया 6 से, that is 251. और पैक्ड इन 19 क्रेट्स. तो 19 क्रेट्स में हमने क्या किया? उनको पैक कर दिया. तो 251 मल्टीप्लाइड बाय 19 इज इक्वल टू 4769 रोजेस. लेट्स स्टार्ट. डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इन अ डिवीजन सम द नंबर विच इज बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवाइजर. The answer we get after division is called the quotient. The number left in the end which cannot be further divided is called the remainder. So 156 divided by 7. So 156 is dividend, 7 is the divisor और divide करने के बाद 22 is the answer, that is the quotient, and 2 जो हमारा left है that is the remainder. So dividend is equals to under bracket divisor multiply by quotient plus remainder. 156 is equals to under bracket 7 multiply by 22 plus 2. Now facts. First, the remainder is always less than the divisor. The quotient, divisor and remainder are always less than the dividend. Now properties of division. First, when a non-zero number is divided by 1, the quotient is the number itself and the remainder is 0. For example, 27 divided by 1 is equals to 27. 513 divided by 1 is equals to 513. Number 2, when a number is divided by itself, the quotient is 1 and the remainder is 0. Example, 39 is divided by 39 is equals to 1. 579 is divided by 579 is equals to 1. Now third, when 0 is divided by any number, the quotient is always 0. Example, 0 is divided by 29 is equals to 0. 0 is divided by 431 is equals to 0. Number 4, division by 0 has no meaning. Example, 35 divided by 0, no meaning. 735 divided by 0, no meaning. Now next is division of a number by a single digit number. We have also learned to divide a number by a non-zero single digit number. Let us revise the method in the following example. Example करते हैं. Divide 668 by 8. Solution करते हैं. Working steps. Step 1. We start dividing the hundreds digit first. But in hundreds place we have 6 which is not divisible by 8. So we put a 0 in the 100 place of the quotient. Now we take the digit in hundreds and tens place together and get 6 hundreds plus 6 tens. क्योंकि हमारा 6 क्या है? 8 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 लगाया, फिर हमने 66 को एक साथ लिया. Now step 2, divide 66 tens by 8. In the multiplication table of 8, we reach out the number which is most near to 66. We know 8 8s are 64. We write 8 in the tens place of the quotient and 64 below
66 in the dividend. On subtracting, we get 2 as a remainder. Now, step 3, bring down 8. 8 को हम नीचे लेके आए, the ones digit. Thus, we have 2 tens plus 8 ones is equals to 28 ones. Now, divide 28 by 8. Again, in the table of 8, we reach out the number which is less than or equal to 28 and is most near to it. तो हमारा 8 3 जा 24. Minus किया, remainder is 4. Write down 3 at ones place in the quotient. We write 3 in the ones place in the quotient and 24 below 28. Now we subtract and find 4 as remainder. In the quotient we have the number 083, but 0 on the extreme left of a number is omitted. Verification करेंगे हम इसका. We can check the division by the following formula. Divisor multiply by quotient plus remainder is equals to dividend. 8 multiply by 83 प्लस किया 4, दैट इज इक्वल्स टू कितना आया 668, विच इज इक्वल्स टू डिविडेंड. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. नाउ प्रैक्टिस टाइम 6.1. क्वेश्चन नंबर 1. डिवाइड एंड चेक योर आंसर फॉर द फॉलोइंग. ए पार्ट 84 इज डिवाइडेड बाय 7. नाउ 8 100 प्लेस पे 7 1 जा 7 माइनस किया 8 minus 7 is 1. Now brought down 4. 7 2 जा 14 माइनस किया, रिमाइंडर इज 0. कैसे चेक करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 12. 12 7 जा 84 विच इज इक्वल्स टू आवर डिविडेंड. सो आवर आंसर इज करेक्ट. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स बाय अप्रोप्रिएट नंबर. ए पार्ट 252 डिवाइडेड बाय 1. किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइड द फॉलोइंग. ए पार्ट 8032 बाय 4. 8032 बाय 4. 4 2 जा 8 माइनस किया 0, ब्रॉट डाउन 0. अब 0 तो 4 से छोटा है, वी हैव टू पुट 0 इन द क्वोशंट एंड ब्रॉट डाउन 3. Now again 3 is also less than 4, we have to put 0 in the quotient. Now brought down 2. Now 4 8 जा 32 माइनस किया 0 0. तो 2008 is the answer. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर. We divide a number by a 2-digit number by the same method as we use for a single digit number. Example करते हैं. Example 1. 648 by 15. Solution करते हैं हम इसका. Working steps. Step 1. Divide hundreds. Hundreds, 6 hundreds cannot be divided by 15. क्योंकि 6 हमारा छोटा है 15 से. सो वी टेक हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट टुगेदर एंड हैव 64. हमारा दोनों को साथ में कितना हो गया 64. नाउ स्टेप 2. डिवाइड 64 टेंस बाय 15. फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 15 वी फाइंड 15 multiply by 4. 15 4s are 60 which is less than 64 and 15 5s are 75 which is greater than 64. So we take 15 multiply by 4 is equals to 60. तो 15 4s are 60 minus किया 4 and write 4 in the tens place of the quotient and 60 below 64. Subtract 64 minus 60 is equals to 4. Bring down ones. हम ones को नीचे लेके आए, that is 8. In the multiplication table of 15 we have 15 3s are 45 and 15 4s are 60. 45 is less than 48 but 60 is greater than 45. So we take 15 multiplied by 3 is equals to 45. 15 3s are 45. Hence quotient is equals to, हमने quotient में लिखा 3, 45 लिखा 48 के नीचे माइनस किया 3. Hence quotient is equals to 43, remainder is equals to 3. Check. Divisor multiply by quotient plus remainder is equals to dividend. 15 multiply by 43 plus 3 is equals to 648 which is correct. Now short way of division. Example 2. Divide
47,356 बाय 73। सॉल्यूशन करते हैं। 47 छोटा है तो हम 3 डिजिट्स लेंगे यहाँ पे। 73 6 4 38 माइनस किया 35 ब्रॉट डाउन 5। 73 4 इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी, या फिर 73 की टेबल को हम लिख के वहाँ पे यूज कर सकते हैं। 73 4 292 माइनस किया 63 हमारा रिमाइंडर आया, ब्रॉट डाउन 6 36। 73 8 584 माइनस किया रिमाइंडर इज 52। Hence quotient is equals to 648 and remainder is 52. Now practice time 6.2. Question number 1. Divide and check your answer. A part 90 is divided by 50. 90 को हमें 15 से डिवाइड करना है। 15 की टेबल में 15 6 90, तो 15 6 90 माइनस किया 0 0। चेक करेंगे आंसर। 15 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 90, दैट इज करेक्ट। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। ए पार्ट 32,182 इज डिवाइडेड बाय 16, तो 3 तो छोटा है तो एक साथ 2 डिजिट लेंगे। 16 2 32 माइनस किया 0 0, ब्रॉट डाउन 1 इज लेस देन 16, तो हमें 8 को भी ब्रॉट डाउन करना है, बट बिफोर दैट वी हैव टू पुट 0। जब हम 2 डिजिट्स को एक साथ ब्रॉट डाउन करते हैं तो वी हैव टू पुट 0 इन द क्वोशंट। नाउ ब्रॉट डाउन 8, नाउ 16 1 16 माइनस किया 2 0, ब्रॉट डाउन 2, अगेन 16 1 16 माइनस किया दैट इज 6, तो हमारे पास क्या आया 211 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 4, तो 211 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 6 6 1 6 0 6 2 12 0 1 1 1 1 1 1 0 एंड 2 6 7 1 2 and 3, 32,176 plus 6 6 12, 1 carry, 7 plus 1 is 8, 1 2 3, that is the dividend. That means our answer is correct. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स। 7035 डिवाइडेड बाय 14, 14 5 70 माइनस किया 0 0, नो वी हैव टू ब्रॉट डाउन 3, और हमने एक साथ ही 5 को भी ब्रॉट डाउन किया, और यहाँ पे हमने 0 पुट नहीं कही, बल्कि करेक्ट क्या है कि जब हम 2 डिजिट्स को एक साथ ब्रॉट डाउन करते हैं तो फर्स्ट डिजिट तो हम बाय डिफॉल्ट ब्रॉट डाउन करते हैं, लेकिन अगर हमारा फर्स्ट डिजिट जैसे 3 हमारा 14 से छोटा है तो हमें 5 को भी ब्रॉट डाउन करना है, तो वी हैव टू पुट 1 0 इन द क्वोशंट। तो ये हमारा रॉन्ग प्रोसेस है, तो हम 0 पुट करेंगे, देन उसके बाद हम 5 को भी ब्रॉट डाउन करेंगे। नाउ 14 2 28 माइनस किया 7। हेयर डिजिट 3 एंड 5 आर ब्रॉट डाउन वन आफ्टर द अदर। इफ 2 डिजिट्स आर ब्रॉट डाउन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हम नीचे लेके आते हैं, देन यू शुड प्लेस 0 इन द क्वोशंट बिफोर डिवाइडिंग फर्दर। नोट दैट 14 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 735, विच इज नॉट इक्वल टू द डिविडेंड। वेयर एज जब हमने 14 मल्टीप्लाई बाय 502 प्लस 7 किया, दैट इज इक्वल्स टू 7035, विच इज इक्वल टू द डिविडेंड। नाउ मैथ्स मैजिक नंबर 1, डिवाइडिंग बाय ग्रुपिंग। एग्जाम्पल करते हैं। 375 डिवाइडेड बाय 15, तो 375 को हमने 300 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 15। 300 को 15 से 15 2 30, तो 20 एंड 15 5 75, तो 20 plus 5 is equals to 25. In this example, break the dividend into 2 parts, that is 375. Then divide by the divisor separately and add up the quotients. Now second, dividing by adding more.
एग्जाम्पल करते हैं, 319 डिवाइडेड बाय 1, 330 डिवाइडेड बाय 11। हमने 319 में क्या किया, 11 प्लस किया, तो 330 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि हमने बढ़ाया है तो माइनस कर दिया कितना, 11 ही इंक्रीज किया था, 11 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 3 जा 33, तो जब हमने 330 को 11 से डिवाइड किया दैट बिकम्स 30, और 11 को 11 से डिवाइड किया -1, दैट इज इक्वल्स टू 29। इन दिस एग्जाम्पल 390 is increased to 330, that is 319 is equals to 330 minus 11, 11 से हमने इंक्रीज किया तो यहाँ पे 11 से ही जो इंक्रीज नंबर उसको डिवाइड कर दिया, उसको माइनस कर दिया। आवर क्वोशिएंट इज 29। नाउ थर्ड, डिवाइडेड बाय ब्रेकिंग द डिवाइजर। एग्जाम्पल करते हैं, 375 डिवाइडेड बाय 15, 375 डिवाइडेड बाय 15 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 375 को हम एक बार 5 से डिवाइड किया दैट इज 75, 75 को डिवाइड किया 3 से दैट इज इक्वल्स टू 25। इन दिस एग्जाम्पल ब्रेक 15 इंटू 5 एंड 3, 15 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 10, 100, 1000, 10,000 etc. Observe the following table: dividend, divisor, quotient and remainder. 72,346 divided by 10 is equals to 7,234 and remainder is 6. 42,967 divided by 100, 100 से डिवाइड किया तो quotient हमारा 429 and remainder is 67. 98,546 divided by 1,000, 98 is the quotient and 546 is the remainder. 8,78,965 divided by 10,000, 87 is the quotient and 8,965 is the remainder. We conclude from the above table that when a number is divided by 10, 100, 1,000, 10,000 etc., we obtained the quotient by removing as many digits from the dividend from the right to left as many zeros are there in the divisor, and the left digits are the remainder digits except quotient. जैसे हमने 10 से किया, 10 में कितनी जीरोज हैं, 1 0, तो हमारा 6 को छोड़ के बाकी जितना पार्ट है वो हमारा क्वोशिएंट है एंड 6 इज द रिमाइंडर। 100 में 2 0 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 67 इज द रिमाइंडर एंड बाकी की डिजिट हमारी क्या है, क्वोशिएंट। नाउ प्रैक्टिस टाइम 6.3, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ए पार्ट, 34 डिवाइडेड बाय 10, 10 में हमारी 1 0 है तो रिमाइंडर क्या रहेगा हमारा 4, और क्वोशिएंट क्या रहेगा, बाकी बची हुई डिजिट दैट इज 3। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जांपल 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9,250, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 74, फाइंड अनदर नंबर। सॉल्यूशन करते हैं। हमें बताया है टू नंबर्स का प्रोडक्ट 9,250 है, उनमें से एक नंबर है 74, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9,250, वन नंबर इज 74, द अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हम वन नंबर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 9,250 इज डिवाइडेड बाय 74, हमने डिवाइड किया दैट इज इक्वल्स टू, तो हमारा क्वेश्चन कितना आया 125, रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है 9,250, thus the other number is 125. Now next, example 2, a grain dealer paid rupees 26,750 for buying a certain quantity of rice. If the rice was purchased at the rate of rupees 125 per quintal, how much rice did he buy? Solution करते हैं। Grain dealer paid rupees 26,750. Rate of rice is 125 rupees per quintal. Total rice purchased by grain dealer. Grain dealer ने कितने दिए 26,750 और पर क्विंटल का रेट क्या है 125। तो टोटल जितना पैसा दिया और जितना उसने पर क्विंटल का जो रेट है उससे डिवाइड किया हमने, डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आया क्वांटिटी, दैट इज 214
quintal. Thus, the grain dealer purchased 214 quintal of rice. Now, practice time 6.4. Question number 1. How many tables can be purchased for rupees 1,94,700 if the cost of one table is rupees 590? तो कितना हमें नंबर ऑफ टेबल्स निकालने हैं. नंबर ऑफ टेबल्स तो क्या करेंगे हम, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन टेबल, कॉस्ट ऑफ वन टेबल. तो टोटल अमाउंट है हमारा 1,94,700 एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 590. तो फर्स्ट 3 डिजिट तो 590 से छोटी है, तो हमें स्टार्टिंग में कितनी लेनी पड़ेंगी, 4 डिजिट. यहाँ पे हमारा क्या है 19 और ये कितना है 5, 5 3 ज़ा 15. तो 590 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 इज 17. तो 3 ज़ा 590, 3 ज़ा 1770 माइनस करेंगे 7, 4 माइनस 7 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे 8, ये 14, 14 माइनस 7 इज 7, 8 माइनस 7 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0. नाउ ब्रॉट डाउन 0. तो अगेन 593 ज़ा 1770 माइनस किया 0, ब्रॉट डाउन 0, कुछ नहीं है नंबर. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 330. तो यहाँ पे हाउ मैनी टेबल्स, तो कितनी टेबल्स आ गई 330 टेबल्स, राइट. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पजल बैग. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. फर्स्ट, वी कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाय, किस नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से, मीनिंगलेस होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो इसके डी ऑप्शन में आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे और सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप रीड आउट करेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और गिवन OMR शीट में आप फिल करेंगे. तो यहाँ पे हमें OMR शीट गिवन है, तो फर्स्ट वाले का डी आंसर था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डी को फिल कर देंगे. नाउ नेक्स्ट इज क्रैक द कोड. नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग. ए पार्ट, 95 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे 4, ब्रॉट डाउन 5, 5 9 ज़ा 45, माइनस किया 0 0, कोशेंट इज 19. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स. इफ प्लस stands for multiplication, multiplication stands for division, division stands for minus and minus stands for plus, what will be the value of 7 plus 2 minus 8 multiplied by 2 divided by 6. हमें given है 7 plus 2 minus 8 multiplied by 2 divided by 6. 7 प्लस हमारा क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, तो 2 प्लस 8 एंड मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, 8 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवीजन इज स्टैंड्स फॉर माइनस 6. तो ये हमारी बन गई इक्वेशन. बोर्ड मास का यूज करते हुए कैसे करेंगे, बोर्ड मास, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 7 2 ज़ा 14 प्लस 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4 माइनस 6. उसके बाद बोर्ड मास, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड करो, 14 प्लस 4 इज 18 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हमारा आंसर इज 12. तो इस तरह से और इक्वेशंस आप बना के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हॉट्स. यूज प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ओनली वंस टू गेट द सम एज 0. तो यहाँ पे आपको ये सारे साइंस एक बार यूज करना है और इनका सम कितना आना चाहिए, 0. तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मैथ्स लैब एक्टिविटी. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विद चेंज्ड साइन. कैरी आउट द फॉलोइंग कैलकुलेशन इफ स्टार मीन्स प्लस, एट द रेट मीन्स माइनस, डॉलर मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड हैशटैग मीन्स डिवीजन. तो यहाँ पे आपको दे रखा है जहाँ स्टार है वहाँ पे आप प्लस करेंगे, जहाँ एट द रेट है वहाँ पे आप माइनस करेंगे, जहाँ डॉलर का साइन है वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ हैशटैग है वहाँ पे आप डिवाइड करेंगे. जैसे फर्स्ट वाले में है क्या है, स्टार, स्टार का मतलब क्या है, स्टार मीन्स प्लस, तो आपको इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. तो इसी तरह से एट द रेट का
मतलब है माइनस। तो इस तरह से साइन को आप सिंबल्स को यूज करेंगे, साइंस को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।